Uh, this chapters 3 and 4 are very important because there is a great truth of justification by faith. और ये जो तीसरा और चौथा अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हमें जो है विश्वास के द्वारा कैसे हम धार्मिक ठहरे जाते हैं उसके बारे में बताया गया है. It brings a liberating effect in our walk with the Lord. और ये जो बात है ये हमें हमारे जो है उसमें आज़ादी लेकर आती है. Yeah. So we need a revelation. Not just it's good to hear it, but when God gives us a revelation, it becomes more exciting. जब प्रभु हमें इसके बारे में एक प्रकटीकरण देता है तो ये हमारे लिए बहुत ही उत्तेजना देने वाली बात बन जाती है. It changes our whole attitude and what we think about God changes when we know this truth as a revelation. और जब हम इस सच्चाई को जान जाएंगे तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो एकदम से बदल जाएगा और हमारे विचार भी जो हैं वो बदल जाएंगे. God is no more a policeman, like a strict policeman or a strict teacher waiting to just see where we have made a mistake, but we see him as a loving father, always cheerful and happy, and we can see a smiling father over us. और हम जो है परमेश्वर को एक जो पुलिस के समान नहीं देखेंगे या कोई एक बहुत ही कठोर जो शिक्षक होते हैं वो जो हमारी गलतियां ढूंढकर हमें डांटने या मारने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे नहीं देखेंगे हम परमेश्वर को, लेकिन एक प्रेमी पिता के समान हम देख पाएंगे. So may the Holy Spirit help us to get a revelation of this truth. तो पवित्र आत्मा ही हमें इस बारे में हमें सहायता दे सकता है. The central fact of this truth is that Abraham was justified, or he was declared righteous because of his faith. और इस जो विषय का जो मूल बिंदु है वो ये है कि अब्राहम जो है वो विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया. So let us look at that part again in Genesis chapter 15. हम इसके बारे में उत्पत्ति के 15वां अध्याय में देखेंगे. And we'll read 5 and 6. और उसका 5 और 6वां वचन पढ़ेंगे. 15 का 5 और 6. And he took, that is God took Abraham outside and said, look towards the heavens and count the stars if you are able to count them. And he said to him, so shall your descendants be. Then he believed, that is Abraham believed in the Lord, and he reckoned to him as righteousness. और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की और दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा. उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना. So that is what it says in Romans chapter 4 verse 3. The same, it is referring to Genesis chapter 15 verses 5 and 6. और ये बात रोमियो का 4 अध्याय उसके 3 वचन में दोहराया गया है. And verse 4 and 5 gives an explanation of what this justification by faith is and what being declared righteous is. और 4 और 5वां वचन ये स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि इस जो तीसरा वचन है इसका मतलब क्या है. Now to the one who works, his wage is reckoned as favor, and what is due. But to the one who does not work but believes in him who justifies the ungodly, his faith is reckoned as righteousness. 4 और 5वां वचन, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु
हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। So there are two types of righteousness according to the Bible. तो पवित्र शास्त्र के अनुसार दो प्रकार के धर्मी है। One is based on the law, or you can say based on works. और एक जो है, एक धार्मिकता जो है वो व्यवस्था पर आधारित है या कर्मों पर, And the other one is a righteousness based on faith. और ये दूसरी धार्मिकता जो है वो विश्वास पर आधारित है। That is the righteousness which Abraham received. वही धार्मिकता है जिसे अब्राहम ने पाया, Not by some good works that he did, but by believing in God's promise. उनके कुछ अच्छे कार्य करने के कारण नहीं, लेकिन सिर्फ विश्वास करने से। Romans chapter 10 verses 4 to 6 we'll read. और रोमियो 10 का 4 से 6 तक हम पढ़ेंगे। Romans chapter 10 verses 4 to 6. It says, "For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. For Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on law shall live by that righteousness. But the righteousness based on faith speaks thus. Do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ down." क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। So, naturally, we will all go to that righteousness of the law or righteousness by works. जो स्वाभाविक रूप से जो है, हम सब जो हैं जो व्यवस्था के अनुसार जो धार्मिकता है उसकी ओर हम आकर्षित होते हैं। Every religion goes by that righteousness, by righteousness of works. हर एक धर्म जो है उसी रास्ते पर वो चलता है, कर्मों के रास्ते पर। But the only true faith, true faith in the living God, speaks about another righteousness which is based only on faith. लेकिन एक ऐसा रास्ता भी है जहाँ हम जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और उसमें जो है जो धार्मिकता हमें मिलती है वो विश्वास से हमें प्राप्त होता है। It's a righteousness based on believing the promises of God. ये ऐसी धार्मिकता है जो परमेश्वर के वादे पर विश्वास करने से हमें मिलता है। Just like Abraham believed God's promise, when we believe what God has done for us and His promises, that's the righteousness which God gives us based on faith, and that is the righteousness which God accepts, and that is the best righteousness. जैसे अब्राहम ने भी विश्वास जो परमेश्वर के वादा था उस पर विश्वास किया और वो धर्मी ठहराया गया, वैसे ही हम भी जब हमें जो वादा मिला है परमेश्वर से उस पर हम विश्वास करेंगे तो हम धर्मी ठहरेंगे। So with this foundation, let us go on with Bible study, verse 14 onwards. और इसी नींव पर हम आगे बढ़ेंगे। 14 वचन, For if those who are of the law are heirs, faith is made void and the promise is nullified. क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। So when Apostle Paul says that we are heirs of God, and to be heirs we have to follow the law. Then faith is not required. For to follow the law, faith is not required. When it's the commandments are there, when you just want to obey it, faith is not required. But when you want to
when the promise is involved, then faith has to be there. तो यहाँ कहा गया है कि अ, हम परमेश्वर के वारिस हैं, लेकिन अगर हम व्यवस्था के कारण हम वारिस बनते हैं, तो वो जो है वो वहाँ जो है विश्वास कार्य नहीं करता है, और वहाँ जो है जो प्रतिज्ञा है वो भी निष्फल ठहरेगी। 15. For the law brings about wrath, but where there is no law, there is neither is there violation. व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। So the law was given basically not to make people righteous, but to tell people that this is sin. Do not kill, do not steal, do not commit adultery. That these are things which you should not do, or keep the Sabbath day, honor your father and mother, do not follow idols. So these are the law was given so that to bring about the knowledge of sin. जो व्यवस्था दी गई वो हमें धार्मिक ठहराने के लिए नहीं दी गई, लेकिन ये बताने के लिए कि पाप क्या है। जैसे कहा गया वचन में कि व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, कत्ल मत करो, या अपने जो है मूर्ति पूजा मत करो। ये सब इसीलिए दिए गए कि हम जान पाए कि पाप क्या है। Verse 16. For this reason it is by faith that it might be in accordance with grace, in order that the promise may be certain for all the descendants, not only of the law, who are of the law, but also who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। God gave His law, the law, to His people, the descendants of Abraham by physical descendants. They are the Hebrews. The God gave them the law. But what about the Gentiles? But what about the Gentiles who put their trust in Christ? That is what this verse says, that the promise may be certain for all the descendants. So there are two types of descendants of Abraham. One is who are descendants by physical descendants, and one is who are descendants spiritually. और यहाँ ये बताया गया है कि जो जैसे अब्राहम के वंश को जो यहूदी है, उन्हें जो है प्रतिज्ञा के द्वारा उन्हें वो जो अनुग्रह मिला वो वारिस बने, लेकिन जो उस वंश के नहीं है उनके लिए भी, जो व्यवस्था के अधीन नहीं है, उनके लिए भी विश्वास के द्वारा ये लभ्य हो गया। So faith, by faith in the living God and faith in what God has planned by sending Christ to die for us, and Christ being risen from the dead as a means for us to have fellowship with God, that faith in what God has done brings the Gentiles into a relationship with God, and they become the sons of Abraham. तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसी रास्ता बनाया जो यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से और हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लेने के कारण जो है हमें परमेश्वर के साथ संगति प्राप्त हुई, और इस प्रकार जो है हम उस धार्मिकता के भागी बन गए। Verse 17 says, "A father of many nations I have made you in the sight of him whom he believed, even God who gives life to the dead and calls into being that which does not exist." तो 17वां वचन, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं।
So God promised before long ages past that Abraham would be a father of many nations. Now, if we say whether that is true, Israel is only one nation. The descendants of Abraham are in only one nation. But what God said was that all many nations means there will be Gentiles from every nation in this world who will be sons of Abraham when they have faith in the living God. और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को ये वादा किया कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा, लेकिन हम सोच सकते हैं कि अब्राहम तो सिर्फ यहूदियों का पिता है, लेकिन जो है विश्वास के द्वारा उनकी जो भी धर्मी ठहराए जाते हैं विश्वास के द्वारा, वे जो अब्राहम के समान ही वो धर्मी ठहराए गए, इसीलिए वो भी उसी वंश के हो जाते हैं और ऐसे गैर यहूदियों को भी जो है ये धार्मिकता प्राप्त हो सकता है. Then it says, even God who gives life to the dead and who calls into being that which does not exist. और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं. So we are serving the living God who gives life to dead things. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो मरे हुओं को जिलाता है. By that I mean, this person may be spiritually dead, maybe not interested in God at all, maybe full of knotted with a lot of sins, but God gives life. When that person gives his life to God, there's a life and there's a change. That's what God does. That is what God can do. तो हम देखते हैं कि जो एक व्यक्ति है जो मरा हुआ हो, आत्मिक रूप से मरा हुआ हो, वो अपना जीवन जो पापों में जकड़ा हुआ है, और लेकिन जब परमेश्वर उन्हें जिंदगी देता है तो उनका जीवन जो है वो बदल जाता है. God doesn't give up on anybody. Jesus doesn't give up on anybody, and so should we. However, if we feel that it's a real gone case, no, there's nobody who's gone case because God gives life to those who are dead. हम कई बार जो हैं लोगों पर हम जो आशा है वो छोड़ देते हैं और निराश हो जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है कभी बचेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है. वो हमेशा लोगों के लिए अपने दिल में आशा रखता है, इसीलिए हमें भी हमेशा दूसरों के लिए अपने दिल में आशा रखनी चाहिए. And he calls into being that which does not exist. That's how he created this world, by the word of his mouth. He created when there was nothing. He created something. So for God to do miracles, it's all possible with him. So we should be a people who expect things which does not exist, can exist, because our God is a living God. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उन्हें भी नाम लेकर जैसे वो है ऐसे वो बुलाता है उनको. जैसे इस शून्य से उन्होंने पूरे संसार को रचा है, ऐसे ही वो हमारे या दूसरों के जीवन में भी कार्य कर सकते हैं. इसलिए हमें कभी भी आशा छोड़ना नहीं चाहिए. Now if we think that the faith of Abraham is just a casual faith, God said a promise and he said yes. No, here we see in verses 18 to 22, verses 18 to 22, the quality of that faith. That faith was also tested, and the quality of the faith is what matters. It's not just a casual, just believe. Yeah, I believe. It's not that way. और हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो अब्राहम है परमेश्वर ने उनसे कुछ कहा और उन्होंने उस पर ऐसे ही विश्वास कर लिया और बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. हम 18 से 22 वचन में हम ऐसे गुण देखेंगे जो विश्वास के गुण हैं जो यहाँ लिखा गया है. In hope against hope he believed, in order that he might become a father of many nations, according to that which was spoken, so shall your descendants be.
And without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Yet, with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God. Verse 21, and being fully assured that what he had promised, he was also able to perform. Therefore, also it was reckoned to him as righteousness. So it was not some casual faith, but he was fully assured that what God has promised, he was able to perform. और 18 से 22 वचन तक उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वे उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो हम देखते हैं कि ये एक मामूली सी विश्वास नहीं था, उसे पूरा निश्चय था कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो उसे पूरे करने में समर्थ है। Okay. So, what about us? God has given us promises. How do we consider those promises? Do we consider them? Yeah, I believe it. But whether we are, as it says, fully assured that what He has promised, was also able to perform. जो वादे परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हम भी उनके बारे में हम कैसे सोचते हैं? क्या हमें पूरी निश्चय है हमारे दिल में कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है हमसे, वो उसे पूरे करने के लिए पूरी तरह समर्थ है? Take for instance some promises. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. जैसे वो वचन जहाँ कहा गया है कि पहले परमेश्वर का राज्य ढूंढो तो उसके साथ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। So, is this a promise that okay, I just think about it sometime, or are we fully assured that it is absolutely true? This word is true. क्या हम इसके बारे में कभी-कभी सोचते हैं या हम पूरी तरह हमारे मन में निश्चय है कि जो प्रभु ने कहा है वो उसे पूरा करेगा? Sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. But I'm still struggling in sin. Are we fully assured that what He promised He is able to perform? पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम अभी अनुग्रह के अधीन हैं, ना कि हम व्यवस्था के अधीन हैं। लेकिन क्योंकि हम जो पाप से हम लड़ रहे हैं, अब तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो वचन है ये सच नहीं है। Brothers and sisters, when we trust God for His promises, God says, "You are a righteous man." जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास करते हैं उनके वादे पर, तो परमेश्वर कहता है कि तू धार्मिक व्यक्ति है। Not because I pay my taxes, or not because I help the poor, or I'm kind to people, not because of that, but because I trust His promises. Remember, let us remember that is the basis of our righteousness. और हमें इसीलिए हम धर्मी नहीं ठहराए जाते क्योंकि हम दूसरों का मदद करते हैं, गरीबों को पैसा देते हैं या अपना जो टैक्स है उसे समय समय पर देते हैं, इसीलिए नहीं, लेकिन क्योंकि हमें जो वादा परमेश्वर ने दिया है हम उस पर पूरी दिल से विश्वास करते हैं, इसीलिए तो हम इसमें बिल्कुल दृढ़ हो जाएं कि इस ही कारण से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। So now we come to the very important part of this chapter. और
और अभी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पर पहुंचे हैं इस अध्याय में. Yeah, we know Abraham was justified, Abraham was declared righteous, but the Bible does not leave it there. It says, verse 23 onwards, now, not for his sake only was it written, that it was reckoned to him, that is about Abraham, but for our sake also, to whom it will be reckoned as those who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead, he who was delivered up because of our transgressions and was raised because of our justification. और जैसे हम 23 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अब्राहम हैं उन्हें धार्मिक ठहराया गया, सिर्फ उनके लिए ही नहीं लेकिन हमारे लिए भी, जैसे यहाँ कहा गया है. और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया. So Abraham is our great example, but we should not leave it there. But the Bible says that it was written for us, so we should also experience the same thing what Abraham experienced. और जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि अब्राहम जो है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए ही नहीं लेकिन हमारे लिए भी लिखा गया है कि हम भी अपने आप को धार्मिक गिने. So when we believe in Jesus, what Jesus was delivered for us, and he was raised up for us, and then when we believe God's promises, so when we believe on, but when Jesus was delivered for us and he was raised for us, we believe that from our heart, then God considers us righteous. So God has given us the gift of righteousness at the time of our belief. तो जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और जिलाए गए, जब हम इस पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमें धार्मिक ठहराता है. And we must stand on this righteousness all of the days of our life, and not go back to the righteousness of the law or the righteousness of works, because the whole nation failed. They are still failing because they are still thinking it is by works. That is the nation of Israel. But the Gentiles who believe, they came to God's purposes. और जैसे हमने देखा है कि जो विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहराए जाते हैं, और विश्वास ना करने के कारण एक पूरा देश जो है वो इस धार्मिकता को पा नहीं पाया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इज़राइल है वो आज भी इसी कारण, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो आज भी इस धार्मिकता से दूर है. So Jesus being raised from the dead, because sin had there was no sin in him, so death had no power over him. So God raised Jesus from the dead, and because of Jesus being raised, we are justified. That's another section to talk about. और यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं था, इसलिए जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए और मारे गए तो फिर वो तीसरे दिन जी उठे, और वो हमारे लिए जो मुक्ति का रास्ता बन गए. So brothers and sisters, I just personally am thankful to God. I can just enjoy His presence, not by my feelings, not by trying to improve myself, but just accepted in the beloved, and that's a wonderful life. और मेरे खुद के जीवन में भी ये बहुत ही धन्य बात है कि परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया है यीशु मसीह में, और इसीलिए मैं बहुत ही आज़ादी से परमेश्वर के साथ संगति कर सकता हूँ. The joy keeps on increasing only. और जो आनंद है वो प्रभु में बढ़ता जाता है, और ये मेरी भावनाओं पर निर्धारित नहीं है. So may God give us grace to understand and to believe His word.
तो परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम इस जो सत्य है इस पर हम विश्वास कर सकें और इस पर चल पाए। So, we heard about faith today. हमने विश्वास के विषय में सुना Faith has got two meanings. और विश्वास के दो अर्थ होते हैं। One, that I believe all what is written in Bible is true. पहली यह इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है वो सच है। That is good, but that is not the true. That is not the complete faith. यह सही बात है और अच्छा है, लेकिन यही पूरा विश्वास नहीं है। We can say even devil knows that all that is written in Bible is true. क्योंकि शैतान भी इस बात को जानता है कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वह सच है। But when we try to do what is written in God's word, when we make effort to obey God, what we find is, we fail totally, completely. और जब हम परमेश्वर के वचन में बाइबल में लिखी गई बातों को अपनी शक्ति से और अपने संघर्ष के द्वारा करने की कोशिश करते हैं, तब हम पूरी तरह से असफल होते हैं और उसमें नाकाम हो जाते हैं। We can see that temptations are so strong that we are not able to face them at all. कि प्रलोभन जो है पाप करने के वो इतने सामर्थ्य होते हैं कि हम उनका सामना नहीं कर पाते और पूरी तरह से उसके सामने हम असफल हो जाते हैं। Then we come to the place where we truly lift up our hands and say, Lord, it's impossible for me to come to such a life. तब हम ऐसे स्तर पर जीवन में पहुंचते हैं जहां पर हम हमारे दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर के सामने कहते हैं कि परमेश्वर, या मेरे लिए इस बात का आज्ञा का पालन करना पूरी तरह से असंभव है। That is the true level of faith where Jesus comes and does that wonderful work in our life. और यही विश्वास का वह सही और सच्चा स्तर है जहां पर हम यीशु मसीह हमारे लिए आते हैं और वही काम वह हमारे लिए करते हैं। We heard from Brother Matthew, he was reading that verse in verse 19. और हम भाई मैथ्यू से जब सुन रहे थे, उन्होंने वचन 19 जो जब वो बांट रहे थे, बता रहे थे Abraham looked into his body, it was hopeless. कि अब्राहम ने जब अपने शरीर को देखा तो उसमें कोई आशा नहीं थी। He looked into Sarah's womb, it was totally dead. और उसने सारा के गर्भ को देखा तो वह पूरी तरह से मरा हुआ था। Then he looked to the promise of God. लेकिन तब उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर देखा। See, that is the same in our life also. We look to ourselves, we are total failure. और हम भी जब हमारे जीवन में ऐसी अपने आप की दशा को देखते हैं, हम पूरी तरह से एक असफल व्यक्ति हैं। But as we heard today that sin shall not have dominion over me because I'm not under law but under grace. लेकिन आज जो हमने वचन सुना कि पाप की प्रभुता मुझ पर नहीं होगी, क्योंकि मैं व्यवस्था के नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हूँ। So I looked to God as Abraham did. He looked to God. He did not waver in unbelief, verse 20, but grew strong in faith, giving glory to God. He's saying, Lord, you only can do this work. I give all glory to you. You do this work in me. And then God did that work in Abraham's life. He gave him that promised son. और यही हम भी देखते हैं कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर फिरते हैं, जैसे अब्राहम परमेश्वर की ओर फिरा। और हम वचन 20 में पढ़ते हैं कि वह उसने अविश्वासियों के परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, परंतु वह विश्वास में दृढ़ हो गया और उसने विश्वास किया और जाना कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की वही कार्य वह उसके जीवन में पूरा करेगा, और वह पूरा भी होता है। Heard that verse from 21, fully assured what God has promised, he is able to perform. और उसके 21वें वचन में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। Yeah, that is what God can do in our life also. Absolutely assured that it's not by my effort. God will do that. It's He who works in me to give. He who works in me to give me the desire and ability to obey Him. और यह परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में भी इसी रीति से कार्य करेंगे कि हम भी जान पाए निश्चय रूप से कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसे वह हमारे जीवन में पूरा करेंगे। और हम विश्वास करें कि हम नहीं परंतु यह परमेश्वर है जो हमें इच्छा और शक्ति देंगे उनके आगे का पालन करने के लिए। That is the true meaning of faith. और यही विश्वास का सही और सच्चा अर्थ है। We are speaking about faith, and
that Abraham had faith in the promise of God. तो हम विश्वास के बारे में बात कर रहे थे और हम ये बता रहे थे कि अब्राहम का विश्वास था परमेश्वर के वायदों पर. So faith is a pillar in our life. और विश्वास हमारे जीवन का एक खंबा है. But only having faith, having that pillar in our life is not sufficient. पर सिर्फ वही एक खंबा होना हमारे जीवन में यह काफी नहीं है. See, because when the foundation is laid for us, that's Jesus, and when we build a house on this foundation, there are 3 more pillars that we need to add. तो जब हमारे जीवन की जो नींव रखी जाती है यीशु मसीह के रूप में और जब हम उसके ऊपर अपना जो घर बनाते हैं तो वह सिर्फ इस खंबे के ऊपर नहीं परंतु उसमें 3 और खंबों की जरूरत होती है. Because you can't build a house on 1, 2 or 3 pillars, you need to build a house on 4 pillars. क्योंकि हम लोग एक घर को सिर्फ 1 या 2 या 3 खंबों से नहीं बना सकते, हमें 4 खंबों की जरूरत है. And that the other 3 pillars is hope, believing and trust. और जो बाकी के 3 खंबे हैं वे हैं हमारी आशा और हमारा उन पे विश्वास और भरोसा. Hoping what God has promised, believing what God has said, and leaning with complete trust, with faith. तो उन बातों पर आशा रखना जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं और उन जो भी बात परमेश्वर ने बोली है उस पर विश्वास करना और अपने पूरे मन से परमेश्वर की ओर ही निर्भर रहना जो और उसके ऊपर ही अपना भरोसा रखना. This was Abraham had in. और यही बात अब्राहम के पास थी. Example, if you see that lady who had this 12 years of sickness of the blood, उदाहरण के तौर पर हम अगर उस स्त्री की बात करें जिनके 12 साल की लहू बहने की उनकी बीमारी थी. if you see it, she had hope in Jesus. और अगर हम देखें तो उनके पास एक आशा थी यीशु मसीह के ऊपर. Where did that hope came from? तो वह आशा कहाँ से आई? Because he must have heard from many people. उन्होंने तो बहुत सारे लोगों से सुना होगा. That hope came, so he started believing in it. वह आशा तब आई जब उसने इन वायदों पर जब उसने विश्वास करना शुरू किया. When she started believing in it, she started trusting. और जब वह विश्वास करने लगी और पूरा भरोसा करने लगी. And that made her faith so strong that she said, because of that trust, only if I touch the garment, I shall be healed. और इसी वजह से जब उसने विश्वास करा और अपना पूरा भरोसा रखा तभी उसने इतने आशा के साथ बोला कि मैं अगर उसका कपड़ा भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी. She moved with hope. अगर हम उस आशा को हटा दें. The lady moved with hope. ओके सॉरी. जो ये स्त्री थी वह अगर आशा नहीं करती, अगर वह आशा से चलती The lady moved with hope. अच्छा, वह जो स्त्री थी वह आशा से चली. Yeah. Believing in Christ. और उसने मसीह पर विश्वास किया. Trusting in Christ. उसके ऊपर पूरा विश्वास भरोसा करा. With full faith. अपने पूरे विश्वास के साथ. She touched the garment by faith. और उसने उनके वस्त्र को विश्वास से छुआ. She got healed. वो चंगी हो गई. What did Jesus tell her? Can you repeat, brother? What does Jesus tell her? और उसके बाद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? Did Jesus say, I have healed you?
क्या यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें चंगा किया है, Did Father heal you? कि मेरे पिता ने तुम्हें चंगा किया है, Did my power heal you? कि मेरे सामर्थ्य ने तुम्हें चंगा किया है? Not at all. ये सब नहीं कहा, But he says, lady, your faith has healed you. परंतु उन्होंने कहा कि हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। So in our life, hope, belief, and trust, the main pillar of the foundation that we build our house is faith. और हमारे जीवन में भी यह जो आशा है, हमारा विश्वास है और जो भरोसा है, ये सब एक नींव के जो खंबे हैं उनके समान है, जिसके ऊपर हम अपना घर बना सकते हैं। Faith is something that we hope, we believe to receive, and trusting in Jesus, something that we have not seen, but we believe in faith that we will receive it. और विश्वास ऐसा है कि जब हम आशा रखेंगे और भरोसा करेंगे, तब हम उस विश्वास में और आगे बढ़ेंगे। Thank you. Amen. Yeah, we all know that Jesus is our Savior. हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है, But the Savior is of use only those who want to be saved. लेकिन वह उन्हीं के लिए उद्धार करता है जो वास्तव में सचमुच उद्धार पाना चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं। A person is lying in a pit and he doesn't want to come out. The Savior is of no use to him. और यदि एक व्यक्ति कीचड़ में है, कीचड़ में दबा हुआ है और वह उसी में रहना चाहता है और उससे बाहर नहीं आना चाहता, तो उद्धारकर्ता का कोई कार्य वहां पर अर्थ नहीं है। So if you really want to be saved and you found that it is impossible with you, you cannot do it, then there is a Savior available for you. और यदि आप अपने आप को उस दलदल में, उस कीचड़ में पाते हैं और आप अपने आप को उसमें से बचाना चाहते हैं, वह इच्छा रखते हैं, तो उद्धारकर्ता आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि आपसे वह नहीं हो सकता। So what we heard today is all our efforts to come out is of futile because it's impossible for us to come out on our own. क्योंकि आज हमने जो वचन सुना वह यही है कि हम अपनी क्षमता से, सामर्थ्य से, प्रयत्न के द्वारा हम बाहर नहीं आ सकते, यह सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। So if you fall into a marshy land, the more you try to come out, the more you go down. और यदि आप दलदल के विषय में जानते हैं, यदि आप उसमें गिर जाएं, तो आप जितना उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे, उतना आप उसमें नीचे धंसते जाएंगे, दबते जाएंगे। The faith we are talking about here is faith in a Savior who is able to deliver you, to bring you out of this pit. और यहाँ पर हम जिस विश्वास की बात कर रहे हैं, उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास करने के विषय में, कि वह उद्धारकर्ता सामर्थ्य है आपको उस दलदल में से खींच के बाहर निकालने के लिए। Then he will surely do it. He will deliver us. And Jesus, the name of Jesus himself is, he will deliver us from our sins. He save us from our sins. और तब जो उद्धार करता है यीशु मसीह, वह आपके लिए जरूर कार्य करेंगे, क्योंकि यीशु इस शब्द का अर्थ ही है उद्धार करता, पापों से छुटकारा देने वाला, और वह आपको अपने पापों से बचाएंगे। So that you don't need to be in sin anymore. तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है और ज्यादा पाप में रहने के लिए। So that is what righteousness by faith is. It's a faith. This faith is a saving faith. This faith is leading us to a salvation from our sins. और यही हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय में बात कर रही है। जो विश्वास जिसके हम बात कर रहे हैं, यही हमें उद्धार कराएगा, हमें बचाएगा। So many people can use it for other purposes also, for healing or for getting money or going to, getting a better job or getting comfortable living. You can use this faith for many things, and God will give you that also. और हम इस विश्वास का इस्तेमाल अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे इस विश्वास के द्वारा चंगाई को पाना, या और अधिक पैसे कमाना, या कोई अच्छी बेहतर जो नौकरी है, काम है, उसको पाना। हम इस विश्वास के द्वारा और भी कार्यों में ला सकते हैं। All the people who got healed because of faith, they all died later on. They all died and they are buried. But that does not take us to eternity. और जितने लोगों ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की चंगाई को पाया और वो चंगे किए गए, वे अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है और वो अनंतता में नहीं पहुंचते। But use the same faith for your salvation from sin. That is what takes us to eternity. लेकिन इसी विश्वास का यदि हम इस्तेमाल कर हमारे पापों से छुटकारा और उद्धार होने के लिए, तो यह विश्वास आपको अनंत काल में लेकर चला जाएगा। So
that salvation from sin is the salvation from everything else also. It will take you out of your sickness, it will take you out of your, poverty, or it will take you out of everything. But it starts from deliverance from sin. और जब आप पाप से आपका उद्धार हो जाता है इस विश्वास के द्वारा, तो आप अपने जीवन में हर एक परेशानी, चाहे चंगाई हो, छुटकारा हो या बीमारी हो, किसी भी बात के ऊपर आपको उस बात के प्रति आपको उद्धार मिल जाता है। लेकिन शुरुआत उसकी पाप से उद्धार होने के द्वारा होती है। That's the kind of faith we are talking about in this study in the book of Romans. और इसी विश्वास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस रोमियो के इस अध्याय के अध्ययन के द्वारा। When God raised Christ from the death, और जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, it was the proof that he is satisfied with the sacrifice of Christ on my behalf. कि यह इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के उस बलिदान को जो उन्होंने मेरे लिए दिया, परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। That is assurance that I am righteous because Christ raised and the sacrifice is accepted, and so my sins are all paid for and I am righteous. और यही मेरे धार्मिकता के लिए मेरे पास पक्का निश्चय और आश्वासन है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में से जिलाया, जिसने मेरे बदले अपनी जान दी। That's what we should believe. We read in 24 and 25. That's what we should believe. और यही हमने वचन 24 और 25 में पढ़ा, जिस पर हम विश्वास करना है। He was delivered for our death, but he was raised so that we will be justified. कि हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे में से जिलाया। If anyone has any doubt that I am not justified, Jesus is risen. That is the proof that I am justified. Because when Jesus is risen from the dead, I was inside him. When he rose, I also rose with him. और यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अभी भी इस बात पर संदेह है कि वह धर्मी ठहराया गया है या नहीं, तो आप यीशु मसीह की ओर देखें। यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, क्योंकि जिस समय यीशु मसीह मारे और गाड़े गए, मैं यीशु मसीह में था, और जब परमेश्वर ने उसे जिला उठाया तब मैं भी उसके साथ जी उठा। This is the faith we should have. Always remember that this is the faith. When no one should be able to deceive us and make us not believe this great historical fact. और यही वह विश्वास है और जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, और यही वह विश्वास जो हमें उद्धार कराता है, और हम अपने आप को किसी को भी अनुमति ना दे कि इस महान सत्य से हमें भटकाने पाए, भरमाने पाए। So living in this faith will make us walk in righteousness, walk in the path of sanctification, and make us become like Christ as the days progress. कि यदि हम इस विश्वास के अंदर चलते रहेंगे तो हम परमेश्वर की इस धार्मिकता के मार्ग में चलते रहेंगे। Amen. Brothers, I just want to share one example where the law made void or law was made powerless before faith. तो भाइयों और बहनों, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताना चाहता हूँ जहाँ पर जो व्यवस्था है उसको असामर्थी बताते हुए असामर्थी बताया गया। Yeah, the law was made powerless before faith. जो व्यवस्था है वह मसीह के सामने व्यर्थ साबित हुई, बिना सामर्थ के साबित हुई। Yeah, so this was coming to my mind. There were two thieves were hanging along with Jesus, one on the right and one on the left. तो यह मेरे मन में आ रहा था कि जब मसीह क्रूस पर थे तो उनके अगल बगल दो चोर थे, एक उनके दाहिनी ओर और एक उनके बाहिनी ओर था। Both were thieves, and both had a similar kind of lifestyle, and both committed sins worthy of capital punishment. तो दोनों ही लोग पापी थे और उन्होंने दोनों ने ऐसे पाप किए थे जिसकी सजा उनको इस रूप में मिल रही थी। Both were judged according to the law and both were given capital punishment. और दोनों ही व्यवस्था के अनुसार उनका न्याय हुआ था और उन दोनों को ही ऐसे क्रूस पर चढ़ाने की सजा मिल रही थी। But one decision at the last minute changes their destination completely. और उनका एक जो निर्णय जो उन्होंने आखिरी क्षण में लिया, उससे उनकी जो मंजिल है वो बदल गई। One thief looked at Jesus and he despised. और एक चोर ने यीशु मसीह की ओर देखा और उसको
नीचा ठहराया, because he was looking at those physical circumstances, because Jesus was equally weak, probably physically he was probably weaker than the thieves, because all his blood was already lost. और वह जो चोर था वह सिर्फ उनकी बाहरी रूप से उनको देख रहा था, शारीरिक रूप से, क्योंकि जो मसीह थे वे उस समय पर उस दोनों चोरों से भी ज्यादा शायद कमजोर थे, क्योंकि उनका पूरा लहू बह चुका था। But the other thief looked beyond. परंतु जो दूसरा चोर था उसने इन बातों से और आगे देखा। So his eyes were open and he saw something new in Jesus, and the other thief realized that Jesus was truly Son of God. और उसकी आंखें खुल गई और फिर उसने यीशु मसीह को पहचानते हुए यह बात अंगीकार की कि वह ही सच्चा परमेश्वर का पुत्र है। And he just simply believed in Jesus. That he must have thought, even if I go to hell now, Jesus will be able to deliver me. और उसने बिल्कुल साधारण रीति से यीशु मसीह पर विश्वास किया कि अगर मैं अभी नरक में भी जाऊं पर फिर भी यीशु मसीह में इतना सामर्थ है कि मुझे वहां से वो छुड़ा लेंगे। That's what he said. When you come back in your kingdom, remember me. और यही बात उन्होंने कही कि जब आप अपने साम्राज्य में वापस आएंगे तब आप मुझे स्मरण रखना। But Jesus said, today you will be with me in paradise. परंतु यीशु मसीह ने कहा कि आज के दिन तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। So one simple faith in the person of Jesus made complete difference in their lives. सिर्फ एक ऐसा विश्वास जो उसने यीशु मसीह पर किया, सिर्फ उससे उसकी पूरा जीवन का जो मंजिल थी वह बदल गई। Yeah, so both were like similar kind of thieves. Both committed probably murders, and both were hanged on the cross. But at last minute, one thief despised Jesus, the other thief believed in him, and he was saved. तो दोनों ही चोर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा पाप किए थे, क्या पता उन्होंने शायद लोगों का खून भी किया होगा, और दोनों ही चोरों को क्रूस पर लटकने की सजा मिली। परंतु एक जो चोर था उसने यीशु मसीह को नीचा दिखाया और दूसरे चोर ने उस पे विश्वास किया। So that clearly shows the power of faith. The power of faith makes love weak. और जब उसने विश्वास किया तो वह स्वर्ग में गया, और इससे पता चलता है कि हमारे विश्वास की कितनी सामर्थ है, और उस विश्वास के सामर्थ से हमारा जीवन बदल सकता है। Yeah, so as Brother Matthew mentioned, the Bible is full of promises. It all depends on how much we believe in them. तो भाइयों और बहनों, जैसे भाई मैथ्यू बता रहे थे कि जो बाइबल है वह बहुत सारे वायदों से भरी हुई है, तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम उन पे कितना विश्वास करते हैं। We will become what we believe in. और हम लोग वही बन जाएंगे जो हम विश्वास करते हैं। May the Lord help us. May the Lord fill us with His Spirit to trust Him continuously. और परमेश्वर हमारी मदद करे और वे हमें मदद करें कि हम पूरी तरह से उन पे विश्वास करें पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब मैं ये गॉस्पेल जब मैंने सुना जब मेरे लाइफ के अंदर, तो मेरे जीवन में एक जैसा वचन में लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा, आजाद करेगा। Is there translation, brother? Yeah, who will translate? Niyati is there. Others, Madhu can translate. Translate. Yeah, I can translate. Yeah, brother, can you repeat? हाँ, या जब मैंने ये गॉस्पेल सुना जो बाइबल में जब भी हमने जो टीचिंग चल रहा है, तो मेरे जीवन में एक छुटकारा लेके आया। As I heard this gospel which is being taught, this gospel brought a deliverance in my life. सिर्फ छुटकारा नहीं, बट एक मेरे लाइफ के अंदर एक एक्साइटमेंट आया। Not only deliverance, but my life was full of excitement after that. और मैं देखता हूँ कि एक हमने सुना कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। So as we have heard that through faith we are counted as righteous.
से मैंने देखा कि लास्ट वीक में एक सिस्टर ऐसा बोल रही थी So I was saying that last week a sister was saying like this. कि मैं बचपन से मेरे घर पे हम गाली नहीं देते हैं. So she was saying that since my childhood, we at our home, we are not using any abuses or anything like that. हम कोई भी ऐसा मतलब गलत काम नहीं करते. And we are not doing anything wrong. हम झूठ नहीं बोलते. We don't say lies. बट मैं जब सुन रहा था कि हमारे अंदर इवन हम व्यक्तिगत हम पर्सनली हम देखेगा हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि हम अच्छे हैं, हमारा धार्मिकता हम कर रहे हैं हमारा अच्छे, बट लेकिन हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि हम सबसे बड़ा हमारे अंदर कोई भी अच्छा काम या कोई भी अच्छा काम करने के लिए हमारे अंदर काबिलियत नहीं है. So what I was saying is that we all have this tendency to think that we are good people, but in true sense we do not have anything good in us. जैसा अब्राहम ने देखा खुद के अंदर कि मैं तो अभी पिता नहीं बन सकता हूँ, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है. As Abraham saw in him that now I cannot become a father and I do not have that capability. उसने सारा के अंदर देखा काबिलियत नहीं है. And he saw Sarah's body that her body was also not capable. और जब उसने परमेश्वर का जो वादा, जो परमेश्वर का वचन जब देखा, उसने परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, उसने विश्वास किया उसमें. And but when he saw the promise which God had made to him, then he believed those promise. और मैं तो टाइम के लिए आप भी अब सोच सकते हो कि प्रभु मेरे तरफ से कितना चीज है जो मेरे लिए असंभव है. फॉर एग्जाम्पल मैं खुद का जीवन बताना चाहता हूँ कि मैं किसी को माफ नहीं कर पाता था, ये मेरे लिए असंभव था, बट मैं देखा कि प्रभु ये चीज हमारे अंदर इतना काबिलियत दे सकता है कि हम दूसरे को माफ कर सके. So we might be thinking for some issues that this is impossible for me. For example, in my life, I used to find it very difficult to forgive people. और हम जवान भाइयों को पूछेंगे कि हम इवन खुद के कि प्रभु मेरी आंखों से लस्ट मेरे अंदर इतना ट्रेमेंडस है कि मैं कहीं ना कहीं गिर जाता. प्रभु मेरे लिए ये असंभव है, मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ मैं. बट मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हमारे अंदर काम कर सकता है, उतना एबिलिटी दे सकता है कि हम लस्ट नहीं करें, लेकिन परमेश्वर पे हम जब डिपेंड हम विश्वास करेंगे उस पे. And if we talk about some young brothers, they might be thinking that it is near impossible for them that they can overcome that habit of lusting. But if we trust on and believe in God and trust upon Him, then it is possible. रिसेंटली मैं एनी मुझे आके बोल रही थी कि डैडी मेरे को सुजैन के प्रति मुझे हेटरेस आ रहा है, मैं इसको हेट करने को ऐसा लग रहा है. So recently it happened that Annie came to me and she said that Daddy, I'm just this hatred against Susan is coming in my heart. So मैंने उसको बोला कि आप जाके प्रे करो, Lord give me the heart to love to Susan. And I told her that you just pray to God that God you give me a heart that I will be able to love Susan. और ऐसे नहीं कि उसके एक दिन में आ जाएगा, मेरे को पता है कि ये टाइम जाएगा, बट इसलिए परमेश्वर हमको टेस्ट करते कि हम कितना दिल से कितना हार्टफुली उसको हम ढूंढ रहे हैं. And it is not like that it will come in one day, because God also tests us that how diligently we are seeking Him. मैं चाहता हूँ कि अपने आप को पूछ कर देखो, तुम रियली में आपके दिल में एक डिजायर है, लॉर्ड आई वांट, मुझे चाहिए किसी हालत में भी. And I want you that you also say to the Lord that Lord, I want this with all my heart. अगर हम कैजुअली ढूंढेंगे, मैं सच कहता हूँ कि नहीं मिलेगा. अगर आप विथ ऑल योर हार्ट, अगर पूरे दिल से आप ढूंढेंगे, प्रभु मुझे ये चाहिए किसी हालत में, भले मैं डिफीटेड हूँ, मैं हार गया हूँ, बट लॉर्ड मुझे अनंत काल का जीवन जो यीशु मसीह के अंदर है वो मुझे चाहिए. If we diligently seek and
with all our heart, then we'll receive. If it's not like if we are casual, we'll receive. Then if we are honest and we are seeking diligently, then we will be able to gain that life of Christ in us. और मैं बताना चाहता हूँ कि ये फ्री है, ये सिर्फ विश्वास के द्वारा है। And I want to say that this is free and it is only through our faith. एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ब्रदर मैथ्यू ने कोट किया कि इस तरह हमको हर दिन हमारा पूरा जिंदगी, पूरा जीवन हमको जीना चाहिए विश्वास के द्वारा। And one more thing I want to say is that, as Brother Matthew said, that this way we have to have faith in God and live like this throughout our life. प्रभु ने मेरे जीवन को बहुत ही एक्साइटेड किया है ये गॉस्पेल सुनकर, और मेरे जीवन में परिवर्तन के लेके आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। The Lord has really made my life very excited after hearing this gospel, and He has changed my life completely, and I really want to thank God for this. थैंक यू गॉड जो कुछ भी आज हमने सुना उसके लिए। I want to praise God whatever we heard today. ये जो रोमन अध्याय 4 में जो जैसे लिखा गया, हमने विश्वास के बारे में जो कुछ भी सुना है, as it is mentioned in chapter 4 of Romans, and whatever we heard regarding faith, तो उसके 4 के 17 में ऐसा बातें लिखा है कि उसने परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया था, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। So it is mentioned there is, as it is written, a father of in the sight of him whom he believed, even God, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. तो यहाँ पर 2 बातें हैं जो जिस पर अब्राहम जो जानता था परमेश्वर को, वो परमेश्वर वो है जो मरे हुओं को जिलाता है। So there are 2 things in this, that Abraham knew that God, who was able to raise the people who are dead. और दूसरी बात है, जो कुछ बातें है ही नहीं उसका नाम वो ऐसे लेता है कि मानो वे है। And the second thing is that he calls on things which do not exist as though they exist. और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में जब वो इस पृथ्वी पर थे, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने रो रो कर प्रार्थना किया और पिता ने उसको मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना किया, और पिता ने उसकी प्रार्थना सुना और उसे मृत्यु की दशा से बचाया। And we read that when Jesus Christ was on this earth, he used to pray to God with cries and to save him from death, and God heard him and he saved him from death. मरे हुए से जिलाने का एक ही अर्थ है कि परमेश्वर के सामने हम जब रोते हैं और जब हम हमारे जीवन के लिए पश्चाताप करते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, हमको ये बात का पूरा विश्वास करना है, वी सर्व अ लिविंग गॉड। ऐसे परमेश्वर के सेवा करते हैं, ऐसे परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं जो हमें उस दशा से जिला सकता है। To be raised from death, that means that when we trust on God, that he is able to save us and he is able to, can you repeat the later part, brother? परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे कोई भी अवस्था से हमको जिला सकता है। That we have to we trust God that he is able to deliver us and save us from any condition in our life. चाहे हम कोई भी तकलीफ से या कोई भी समस्या से गुजरे, किसी भी चीज पर हमने विक्ट्री नहीं पाया हो, लेकिन यदि हम भरोसा रखते हैं उस परमेश्वर, उसके सामने जाकर पश्चाताप करते हैं, वो हमें वहां से जिलाने की सामर्थ्य रखता है, और ये अब्राहम जानता था। And even if we are defeated in our sinful life and we are not able to conquer any sin, then God is able, and through our faith we can have that victory. और दूसरी बात ये है कि जो कुछ है ही नहीं उसका नाम परमेश्वर ऐसे लेता है कि मानो वे है। And the second thing is that whatever is not in existence, God calls on those things as though they exist. हमारे जीवन में शायद आज हमको विक्ट्री नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है 1 यूहन्ना अध्याय 3 में, यीशु कहता है, जवानों तुमने जय पाया है। So there may be that we do not have any victory in our life, but Bible says in 1 John 3, brother. Yeah, 1 John 3. Bible says in 1 John 3 that Sorry, 1 young John people. 2, 1 John 2. 1 John 2:14 हे जवानों तुमने जय पाई है। The Bible says in 1 John 2 verse 14 that, O young people, you have already
won the victory. और जैसे हमने मैथ्यू ब्रदर से भी सुना, कोई पाप हम पर प्रभुता नहीं करने पाएगा, ये हम देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा, जो बातें है ही नहीं उसको नाम वह ऐसे लेता है कि मानो वे है. So as we were hearing from Brother Matthew that that sin will not be able to have dominion over us, and as we are reading that he calls on things that do not exist as though they exist. ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब हम ये दो बात पर विश्वास करेंगे कि हमारा परमेश्वर हमको मुर्दों की अवस्था से जिलाने की ताकत रखता है. So brothers and sisters, if we believe on the fact that God is able to raise us from the death-like situation, और जो हमारे जीवन में अगर हम नहीं देखते उसका नाम भी प्रभु ऐसे लेता है कि मानो वे है. or whatever we do not see in our lives, all those things God calls on as though they exist. और तभी उसके 18 वचन में लिखा है, उसने निराशा के अवस्था में भी उसने विश्वास किया. जब हम अपने परमेश्वर को जानते हैं कि हमारे कोई भी परिस्थिति से हमें वो उठाने की ताकत रखता है, हमें बदल सकता है, जब हम पश्चाताप के साथ उसके पास आ सकते हैं, और वो हमारे जीवन में जो नहीं है उसको भी मानो वो देख के उसका नाम रखता है और उसे कहता है कि वो है, तो हम ये जान सकते हैं कि हम कोई भी अवस्था, निराशा की अवस्था में भी है तो परमेश्वर पर हम आशा रखकर ये मसीह दौड़ में हम दौड़ सकते हैं. As verse 18 says that we have this hope against all hopes, that he might become that and we know that these two facts, that God is able to raise us from any situation, any even from death, and even he can call things which do not exist, then we have all the hope that we need.